Welcome to the yet another session on desktop publishing. In last lecture, we were discussing the concept of image resolution and size. Today, we will also discuss with we will continue the topic that is image file size and the output with the yesterday's topic. So, start करते हैं with the image resolution. So, image resolution can be defined as number of pixels from left to right and top to bottom that will be printed every inch of paper. तो क्या है, अब हमें पता है कि in bitmap graphics we have already discussed the concept of the bitmap graphics. So in bitmap graphics, the image is made up of tiny dots called pixels. Now pixel is basically picture element. So in bitmap graphics, the image, now let's assume, suppose that this is your image. The image is made up of tiny dots called pixels. Now, the resolution of the image can be defined as number of pixels left to right and top to bottom per square inch. Image की per square inch में total number of pixels कितने हैं? Left to right and bottom to top. That is called the resolution. तो पहले आपको रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. The resolution can be defined as number of pixels from left to right and bottom to top to bottom per square inch. हर per square inch में total number of pixels कितने हैं left to right and top to bottom is called image resolution. आमतौर पे जो हम वेब पे images यूज करते हैं उनकी रेजोल्यूशन होती है 72. 72. The resolution is measured into the DPIs or PPIs, dots per inch और points per inch. लेकिन जो हम प्रिंटिंग के लिए इमेजेस यूज करते हैं उनकी जो होती है रेजोल्यूशन दैट इज अराउंड 300. तो वेब के लिए हमें ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं चाहिए होती, लेकिन प्रिंटिंग के लिए हमें ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए होती हैं, इसीलिए उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती है. तो पहली तो बात ये क्लियर कर लो कि रेजोल्यूशन इज नथिंग टू डू विद द कंटेंट ऑफ द पिक्चर. उस पिक्चर में क्या है क्या नहीं है और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बिल्कुल रेजोल्यूशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है. रेजोल्यूशन का सिर्फ लेना देना है नंबर ऑफ पिक्सल से. तो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पिक्सल्स लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम और दैट इज कॉल्ड द एंड पर स्क्वायर इंच. अब ये देखिए, अब सपोज कीजिए you want to calculate the size of the image having total number of pixels, let's say 800 and 600. तो मान लीजिए आपके पास एक इमेज है, इमेज का साइज है 800 into 600. जो ये पहली फिगर है that is for width and the second is for height. तो मान लीजिए आपके पास एक इमेज है जिसकी विड्थ है 800 पिक्सल्स और जिसकी हाइट है 600 पिक्सल्स. तो अब मुझे कैलकुलेट करना है इस इमेज का साइज कितना है इंचेस में, क्योंकि ये जो 800 और ये 600 है, दीज आर द पिक्सल्स. Now if you want to calculate the size of this image into the inches, what you need to do is you need to divide the number of pixels horizontally and vertically by the resolution. तो मान लीजिए हमारी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है दैट इज 72 DPI.
DPI stands for dots per inch. तो इट मींस अब जो मेरी गिवन इमेज है उसकी विड्थ है 800 पिक्सल, हाइट है 600 पिक्सल्स और उसकी रेजोल्यूशन है 72 DPI. तो इट मींस पर स्क्वायर इंच कितने पिक्सल्स हैं? 72. Now I want to calculate the size of this image into the inches. So what I need to do now, I will divide the width and the height with the resolution. So resolution is 72. 72. So if you will divide the 800 by the 72, you will get the height of the image into the inches. So for example, 800 divided by 72 is 11.11 inches. And 600 by 72 will be 8.33, yeah, 8.33 inches. So it means if a picture is of 800 pixels wide, जिसकी left to right pixels है 800 और top to bottom pixels है 600 और उस image की resolution है 72, तो उस image का size कितना होगा? The size will be, the width will be 11.11 inches and the height will be 8.33 inches. So this is how we calculate the size of the image, the output size of the image from pixels and the resolution. I hope आपको clear हुआ. एक बार मैं फिर से बता देता हूं. Suppose हमने अभी जो एग्जांपल ली तो मैं यहाँ पे बता देता हूं. Suppose हमारे पास एक इमेज है जिसकी विड्थ में टोटल पिक्सल्स हैं 800 और जिसकी हाइट है 600. तो इमेज का ये क्या हो गया? टोटल साइज क्या हो गया? 800 बाय 6 इंटू 600 पिक्सल्स. तो इसमें इसकी विड्थ है 800 और हाइट है 600 और वी आर यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ 72 DPIs. Resolution means number of pixels per square inch. तो मान लीजिए टोटल इमेज का साइज ये था 800 इंटू 600, लेकिन पर स्क्वायर इंच है मेरे पास 72 पिक्सल्स. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज इनटू द इंचेस, व्हाट यू नीड टू डू इज you just need to divide this number with the resolution. This will result in the form of width of the image into the inches, and if you will divide the 600 by 72, you will get the height of the image into the inches. So it will be 11.11 and 18.8.33. So this is how you can calculate the size of the image into the inches from the pixels. एक चीज ध्यान देनी है, वो है ये रेजोल्यूशन. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी, जितनी रेजोल्यूशन कम होगी क्वालिटी उतनी ही कम होगी. जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा क्वालिटी ज्यादा, इमेज का फाइल साइज भी ज्यादा होगा, और जितनी रेजोल्यूशन कम होगी क्वालिटी भी कम होगी और फाइल साइज भी कम होगा. इसीलिए जब हम वेब के लिए पिक्चर्स प्रिपेयर करते हैं तो आमतौर पे हम यूज करते हैं 72 DPIs, लेकिन जब हम प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो हम जाते हैं फॉर 300 DPI ताकि प्रिंटिंग आउटपुट अच्छी हो. तो इट मींस जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी ही उसकी आउटपुट क्लियर होगी.
और जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतना ही उसका फाइल साइज भी ज्यादा होगा. I hope this is clear to you. Now the second point is how to calculate the file size of the image. तो फाइल साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारा एक सिंपल सा प्रोसीजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास एक इमेज है with the width of 800 pixels and height of 600 pixels. तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है फाइल साइज. पहले हमने इमेज साइज कैलकुलेट किया इंचेस में. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस फाइल का साइज क्या होगा, कितनी मेमोरी में ये लेगी, टोटल मेमोरी लेगी कंप्यूटर में टू स्टोर. तो फाइल साइज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द विड्थ इनटू नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हाइट. सो first of all I'll multiply the 800 with the 600. So the answer is 4,80,000. ठीक हो गया जी, क्लियर. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यू नीड टू डिवाइड द टोटल नंबर, यू नीड टू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इनटू द पिक्सल डेप्थ. अब ये बिट पिक्सल डेप्थ क्या होती है जी, एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए. मान लीजिए एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए आप यूज कर रहे हो 8 बिट्स. तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल पिक्सल, यू विल गेट द साइज ऑफ इमेज इनटू बिट्स. तो हम कर लेते हैं ये 4,80,000 को हमने कर लिया विद द 8. आंसर इज 38,40,000. 38,40,000 ये आ गया टोटल बिट्स. अगर ये टोटल साइज आ गया बिट्स में, अगर आप इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर दोगे विद 8. 8 के साथ डिवाइड करने पे आपके पास आ जाएगा 4,80,000 बाइट्स. लेकिन इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो बाइट्स, then again you need to divide this by these bytes with the 1024. तो जब आप 4,80,000 को डिवाइड करोगे 1024 के साथ, द आंसर इज 468.75 बाइट्स, किलोबाइट्स. So this is how you can calculate the size of the image. पहले टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करो, उसको बिट डेप्थ के साथ, पिक्सल डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो. द रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ बिट्स. उसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 के साथ डिवाइड कर दो, किलोबाइट्स कन्वर्ट करने के लिए 1024 के साथ, और एमबी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्दर 1024 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. तो ये सारी डिवीजन इसके अकॉर्डिंग चलेगी. So that concludes the today's session.